پر ایمان رکھتا ہے کہ جو کائنات چل رہا ہے یہ اللہ کے حکم سے چل رہا ہے، یہ اللہ کی مرضی سے چل رہا ہے، اور ہم سب آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، آخرت کی تیاری کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ ہمارا یقین ہے، ہمارا ایمان ہے، ہم مریں گے، اس دنیا سے جائیں گے، پھر جانے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، دوبارہ اٹھایا جائے گا، اور ہم نے اس دنیا کے اندر جو محنتیں کی ہیں، جو کوششیں کی ہیں، جو سنت پر عمل کیا ہے، جو اللہ کے حکم کو مانا ہے، ہمیں اس کے ایک ایک چیز کا بدلہ ملنے والا ہے، ایک ایک چیز کا ثواب ہمیں ملنے والا ہے۔ تو ہم سب کا اس پر یقین ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کے بارے میں فرماتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اس کو چاہیے کہ جب بات کرے تو اچھی بات کرے، جب بولے تو خیر کی بات کرے، جب بات کرے تو بھلائی کی بات کرے، اور لیصمت ورنہ خاموش رہے، اپنی زبان کی حفاظت کرے۔ ہماری زبان سے نکلنے والی ہر بات نوٹ کی جاتی ہے، اللہ کی طرف سے ہر بات کو لکھا جاتا ہے، ہمیں سوچ سمجھ کر بولنا ہے، اپنے اخلاق کو دیکھنا ہے، اپنے کردار کو دیکھنا ہے۔ آج ہم ایمان والے، آج ہم مسلمان اپنے اخلاق کتنے گرے ہوئے ہیں، معاملات میں ہم پیچھے ہیں، عبادات میں ہم پیچھے ہیں، تمام چیزوں میں ہم پیچھے جا رہے ہیں، اور ان اخلاق میں سے جو سب سے اہم چیز ہے وہ زبان ہے، کہ انسان اسی زبان کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے ان کا معاملات کیسا ہے، ان کے اخلاق کیسے ہیں، اور ان کے کردار کیسے ہیں، اسی زبان کے ذریعے سے ان کی پہچان ہوتی ہے۔ تو اپنی زبان کا صحیح استعمال کرنا ہے، صحیح جگہ استعمال کرنا ہے، زبان کے اندر مٹھاس پیدا کرنی ہے، اپنی زبان کے اندر کڑواہٹ میں پیدا کرنی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بات کر رہے ہیں اور ہمارے سننے والے ہم سے اتنے بدزن ہو چکے ہیں، ہماری زبان سے اسے اتنی کڑواہٹ محسوس ہو رہی ہے، دامن چھڑا کر بھاگ جاتے ہیں، بہانہ بنا کر نکل جاتے ہیں، بات سننے کی کوشش نہیں کرتے، سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ ہماری زبان کی نوسط ہے، اور پھر اس میں سے زبان کے ہمارے عضو کے اندر جو ایک حصہ ہے، ان کی نحوست کتنی بڑی ہے کہ یہ طلاق جیسی اہم چیز وہ اسی زبان کے ذریعے سے سرزد ہوتی ہے۔ اسی قاسم بہار کے اندر کتنے نوجوان اب تک ہمارے پاس آ چکے ہیں کہ ہم نے غصے کے اندر آ کر اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دیا ہے، اسے 1 طلاق دے کر پیٹ نہیں بھرتا، 2 طلاق دے کر اسے سکون نہیں ملتا، 3 طلاق دینے کے بعد پھر سامنے آتا ہے ہم سے غلطی ہو گئی، میں غصے میں تھا اور 3 طلاق دیا۔ ارے طلاق کس میں؟ خوشی میں دی جاتی ہے، جب آدمی خوش ہو پھر طلاق دی جاتی ہے۔ آج ہم بہت خوش ہیں، لو میری بیوی میں تمہیں 3 طلاق دیتا ہوں۔ غصہ طلاق تو غصے میں دی جاتی ہے، تو غصہ برداشت کرنے کا موقع ہے۔ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، برداشت کرنے کا مہینہ ہے، ہمیں برداشت کرنے کی ضرورت ہے، اور صبر کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت رکھا ہے، ہمیں اس کو حاصل کرنے کے طریقے کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ آج ہماری زبان کہاں تک گر چکی ہے، ہمیں تھوڑا دھکا لگ جائے، تھوڑا سا جھٹکا لگ جائے تو منٹوں اور سیکنڈوں میں 12-13 گالیاں زبان سے نکل جاتی ہے، ماں بہن کر دیتے ہیں، اور نہ جانے کیسی کیسی بکواس کر دیتے ہیں۔ اسی زبان کی وجہ سے انسان بے عزت ہو جاتا ہے، ذلیل ہو جاتا ہے۔ اس زبان کا صحیح استعمال کرنے کا ہمیں طریقہ اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا ہے۔ بولو تو اچھی بات بولو، ورنہ خاموش رہو، اسی میں تمہاری نجات ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من صمت نجا، جس نے خاموشی اختیار کی اس نے نجات پا لیا۔ تو ہمیں بولنا ہے، اچھی بات بولنا ہے، بات کرنی ہے، اچھی بات کرنی ہے۔ زبان کی مٹھاس کی وجہ سے انسان بہت سارے کام بنا لیتا ہے، لیکن انسان کی زبان کے اندر مٹھاس ہے، کہیں مدر لگی ہوئی ہے، وہ انسان نہیں ہے، اسے فون کر کے بلایا جاتا ہے، بھائی آپ کی کمی محسوس ہو رہی ہے، آپ آ جائیں مجلس کے اندر، 4 مجلس میں 4 چاند لگ جائیں گے، مجلس کے اندر خوشی تاری ہو جائے گی۔ آپ کی زبان کے اندر بہت مٹھاس ہے، آپ کی بات سننے میں بڑا مزہ آتا ہے، دل خوش ہو جاتا ہے۔ تو زبان کے اندر مٹھاس پیدا کرنا ہے، پڑوسی کا خیال رکھنا ہے، سامنے والوں کا خیال رکھنا ہے، بھائیوں کا خیال رکھنا ہے، اپنی زبان کو میٹھا بنائیں۔ اور پھر علماء فرماتے ہیں اسی میٹھے زبان کی وجہ سے، اور قاری اسامہ آنندی دامت برکاتہ فرماتے ہیں کہ ایک
लतीफा है कि एक इंसान, एक दरवेश, एक फकीर अपनी जबान की मिठास की वजह से एक बड़े से बड़े वकील से अपना काम बना लेता है, उनका काम हो जाता है। वाकया यूं है कि एक दरवेश, एक फकीर एक बादशाह के गेट पर पहुंचता है, वहां दरबारी लगे हुए हैं, चौकीदार बैठे हुए हैं। वो चौकीदार उनसे कहते हैं कि भाई कैसे आना हुआ, क्या मकसद है? हाँ, एक दरवेश हूँ, एक फकीर हूँ, वैसे देखने से लगता नहीं फकीर हूँ, अच्छा खासा लग रहा हूँ, लेकिन मेरा ये काम है, मैं इस काम को करता हूँ। तो उन दरबारियों ने कहा, उनसे कहा भाई कैसी बात कर रहे हो, तुम किस दरवाजे पर आए हो? हम यहाँ पर 14 साल से मेहनत कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, और हमारे मालिक की हालत यह है कि वो तनख्वाह रो रो कर देता है, जान निकल जाती है तनख्वाह देने में उसकी। और फिर यही नहीं, फिर वो ये फरमाते हैं कि तुम उनके पास जाओगे सिवाय रुसवाई के, जिल्लत के, कुछ हाथ नहीं लगेगा, किसी झोपड़ी के पास चले जाओ, वहां तुम्हें कुछ पैसे मिल जाएंगे। लेकिन वो फकीर, वो दरवेश इतना ज़हीन था, इतना सियाना था, और फिर वो इतना फतीन था, उसने अपने दिमाग लगाया और उन दरबारियों से कहा, अगर मैंने इससे नहीं लिया, जो तुम बोलते हो कि हमारा बादशाह जमाने का सबसे बड़ा वकील है, उनके पास जाने का कोई फायदा नहीं है, लेकिन मैं आज कहता हूँ कि आज मैं उनके पास जाऊंगा, और जब तक मैं उनसे कुछ न ले लूं तब तक मेरे ये दरवेशी किसी काम की नहीं है, इस फकीरी का कोई फायदा नहीं है, मुझे जाने दो। चुनांचे फकीर अंदर जाता है, बादशाह से मिलता है, बादशाह फरमाता है कैसे आना हुआ, कैसे आए हो? तो फकीर कहता है कि मैं भिखारी हूँ, भीख मांगने आया हूँ, कुछ लेने आया हूँ आपसे। बादशाह, वो इतना बड़ा वकील जमाने का, वो कहता है यहाँ तो मुफ्त में पानी भी नहीं मिलता है, तुझे भीख कैसे मिल जाएगा? लेकिन वो फकीर फिर भी हार नहीं मानता है, फिर सवाल करता है। तो बादशाह ये सवाल करता है कि एक सवाल का जवाब दे दे, फिर मैं तुझे जो 40 सिक्के अता करूंगा। तो बादशाह ने कहा, फकीर ने कहा सवाल कीजिए। जैसे ही बादशाह ने सवाल किया, बड़ा पेचीदा सवाल किया, और उनसे कहा, ऐ फकीर, ऐ दरवेश, ये बता कि मेरी हथेली में बाल क्यों नहीं है आज भाई समझ में के अंदर, जिसके हथेली के अंदर बाल हो, इतना पेचीदा सवाल है। सवाल क्या, मेरी हथेली में बाल क्यों नहीं है? इसका जवाब देकर और 40 सिक्के लेकर चला जा। वो भी ज़हीन था, वो पीछे हटने वाला नहीं था, उसने बादशाह की तारीफ करना शुरू किया। कहा, बादशाह, बादशाह सलामत, हमने सुना है आप बहुत ही बड़े हैं, बहुत फयाज हैं, बहुत माल लुटाने वाले हैं, बहुत खैरात करने वाले हैं। और फिर जवाब दिया, आपने इतना खैरात किया, इतना लुटाया कि आपके देते देते आपके हथेली के बाल घिस गए। ये सुनकर फिर बादशाह हैरान हो गया, इसने तो जवाब दे दिया, फिर अपनी बात को आगे बढ़ा, चलो मान लिया मैं खैरात करते करते देते देते मेरे हथेली के बाल घिस गए, खत्म हो गए। लेकिन बादशाह को अंदर से यकीन था कि ये बंदा, ये दरवेश झूठ बोल रहा है, क्योंकि मैं तो बहुत बड़ा वकील हूँ, मैं किसी को पैसा तक नहीं देता हूँ, लेकिन ये मेरी तारीफ कर रहा है। लेकिन हम समझ सकते हैं, हमारे समाज के अंदर सबको मालूम है एक बंदा झूठा है, बहुत बड़ा झूठा है, बहुत झूठ बोलता है, लेकिन वो खुद को ये नहीं बताता मैं झूठा हूँ। कोई उसकी तारीफ कर दे, वो फूले नहीं समाता, खुश हो जाता, वाह मैं तो झूठ भी बोल रहा हूँ, लोग मेरी तारीफ पे कर रहे हैं, अच्छे बंदे हैं। तो फिर उन्होंने बादशाह की तारीफ की, तो बादशाह को अंदर से समझ गया झूठा है, लेकिन मेरी तारीफ कर रहा है। तो फौरन दूसरा सवाल किया, ठीक है, मेरी हथेली की बाल ऐसे लुटाते लुटाते चला गया, अब तू बता तेरी हथेली के अंदर बाल क्यों नहीं है? दरवेश हैरान हो गया, परेशान हो गया। फिर उसके ज़हन में एक बात आई, कहा, बादशाह सलामत, आप लुटाते रहे, जिन फकीरों, जिन दुर्वेशों को आपने लुटाया है, जिन्हें दिया है, उन दुर्वेशों फकीरों में लेने वाला मैं भी तो हूँ, मैंने भी लिया है। आपका लुटाते लुटाते घिस गया, और मेरा लूटते लेते लेते घिस गया है, मेरे हथेली के बाल भी घिस गए। तो आखिरी सवाल किया और कहा, ऐ फकीर बता, तो मैं समझ गया कि मेरा देते देते घिस गया, तेरा लेते लेते घिस गया, अब ये बता, ये दरबारी बैठे हैं, ये चौकीदार सामने बैठे हैं, इनके हथेली में बाल क्यों नहीं है? तो फकीर ने कहा, बादशाह सलामत, सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए, जिस तरह आपका माल लुटाते लुटाते दूसरों को देते देते घिस गया, और मेरा लेते लेते घिस गया, ये तो दरबारी बैठे हैं, ये बेचारे परेशान हैं, ये हसद कर रहे हैं और चल रहे हैं कि हमें
को नहीं मिलता, वो चलते चलते अपने हाथ को मलते हैं और मलते मलते उनके हाथ के भी बाल घिस गए, उनके हथेली के बाल भी चले गए। बादशाह समझ गया बंदा बहुत मौजीला है, बंदा बहुत चालाक है, फौरन हुक्म दिया इसे 40 सिक्के दो और बाहर करो, ये मानने वाला नहीं है, क्योंकि वो बाहर से चैलेंज करके आया था कि मुझे बादशाह का सवाल का जवाब भी देना है, 40 सिक्के भी लेना है, और जिन दरबारियों ने कहा था वहां से कुछ नहीं ले सकते, उन्हें भी मुंह दिखाना है। 40 सिक्के लेकर बाहर निकलता है, मुंह पर ताव फेरता है, देखो मैंने लिया कि नहीं लिया, ये कहां से हुआ, ये जबान की मिठास से हुआ। अल्लामा रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं इंसान अपनी जबान की मिठास की वजह से दो दुश्मन को भी दोस्त बना लेता है, और अपनी जबान की करवाहट की वजह से औलाद भी माँ बाप से दूर हो जाती है, औलाद भी खत्म हो जाती है, औलाद भी हाथ से निकल जाती है। तो अपनी जबान को मीठा बनाए, अपनी जबान को हल्का बनाए, लोगों को अपनाए, दिल जोड़ने की कोशिश करें, दिल को तोड़ने की कोशिश ना करें, एक माहौल बनाए। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी मस्जिद में पिछले 1 साल से ऐलान हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह आप में से मुझे यकीन है कोई बखील नहीं है, सारा सखी नजर आ रहा है। क्यों? इस वजह से सखी नजर आ रहा है, पिछले 1 साल से मस्जिद की जमीन का जो ऐलान हो रहा है, 33 का जमीन का 8 लाख में जो पैसा तय हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी मेहनत से, आपकी कोशिश से, आपकी फिक्र से, आपका 10,000 10,000 देने की वजह से ये लागत तकरीबन 6 लाख के करीब हो चुका है। 6 लाख पैसे जा चुके हैं। अब आपके पास आखिर में एक बार हम हर हफ्ते 2 हफ्ते की बात सामने रखते हैं, वरना हमारे सदर साहब का कहना है कि हर हफ्ते हर जुमे को बात रखिए। हो सकता है मजमे के अंदर कहीं बाहर से आने वाले होते हैं, उनकी तमन्ना होती है, उनकी ख्वाहिश होती है कि आज अगर मस्जिद में कोई ऐलान हुआ हम उसमें हिस्सा लेंगे, लेकिन फिर भी हमने आप लोगों को देखकर ये समझा, हमने ये ख्याल किया हो सकता है कहीं हमारे हर जुमा को बार बार बोलने से आपको बार हो रहा हो, आपको गिरा महसूस हो रहा हो कि इमाम साहब ने भी एक काम बना लिया, हर हफ्ते परेशान कर रहे हैं, मस्जिद के लिए आवाज लगा रहे हैं, कहीं ऐसा ना आप इस मस्जिद को छोड़कर किसी दूसरी मस्जिद में चले जाए जुमा पढ़ने, हमें वहां पैसा देना पड़ता है। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, आपका एक एक पैसा देना, आपका एक एक रुपया देना, ये अल्लाह के दरबार में जमा हो रहा है, अल्लाह के खजाने में जमा हो रहा है, और आपका पैसा ऐसी जगह लग रहा है जिसके पाक साफ होने में कोई शक व शुबा नहीं है, जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने खुशखबरी सुनाई है कि जिसने मस्जिद बनाई अल्लाह ताला जन्नत में उसके लिए महल तैयार करेगा। अगर हमारे पैसे से एक ईंट भी लग जाए, मस्जिद बनाने का मकसद ये नहीं है अकेला मस्जिद बना दे आपको जन्नत में महल मिलेगा। अगर आपकी एक ईंट भी उस मस्जिद के अंदर लगी, आपके एक पैसे एक रुपया भी इस मस्जिद के अंदर लगे, तो आपको भी वही महल मिलेगा। अल्लाह के खजाने में कमी नहीं है, हमारे मांगने में कमी है, अल्लाह के देने में कोई कमी नहीं है। एक बार फिर हम आवाज लगाते हैं, वक्त भी हो चुका है, वो नौजवान कोशिश करें, हिम्मत करें, बताएं कौन ऐसा नौजवान है, कौन ऐसा शख्स है जो 1 गज जमीन का पैसा देने के लिए तैयार है। बताएं, खड़े हो जाएं। 1 गज जमीन की अंदाजा मैंने लगाया जो तकरीबन 24,250 रुपए बनते हैं करीब करीब। है कोई जो अपने नाम से या अपने मरहूम वालिदैन के नाम से देना चाहता हो? बताएं 1 गज जमीन के लिए कौन तैयार है? अल्लाह तबारक व तआला उसे जन्नत में बेहतरीन महल अता फरमाएगा। बताए भाई, हिम्मत करें, कोशिश करें और जल्दी जल्दी इस काम को निपटा लें और आसान कर दूं। 6 आदमी तैयार हो जाएं, 6-6 हजार रुपए लगेंगे, 1 गज जमीन हो जाएगी। 6 आदमी मिलकर 1 गज जमीन देने के लिए कौन तैयार? बोले। 6 आदमी मिलकर 1 गज, एक आदमी पर 6,000 भरेंगे। बताएं भाई, हिम्मत करें, जल्दी करें। माशाअल्लाह आपने 1 साल से कोशिश किया, मेहनत किया है, बल्कि 4 आदमी में हो जाएंगे। 6 6 24, 4 आदमी में 1 गज जमीन हो जाए। बताएं 4 आदमी, 6 आदमी मिलकर दे दें, जल्दी से बताएं, कोशिश करें। हमारे साथ हमारा कुछ नहीं जाने वाला है, हमारे साथ हमारे अमाल जाएंगे। हमने जो खर्च किया है, हमने जो अल्लाह के घर में अल्लाह के रास्ते में लगाया है, यही चीजें हमारे साथ जाने वाली है। जल्दी से बताएं। 2 हफ्ते के बाद हम आपके सामने आए हैं इंशाअल्लाह।
जब तक ये 1-2 लाख रुपए नहीं हो जाता, हम हफ्ते 2 हफ्ते में आपके सामने बात रखेंगे। उम्मीद है आपकी मेहनत से, आपकी कोशिश से, आपकी फिक्र से ये काम होगा और बहुत जल्द होगा। और हमें ये भी उम्मीद है कि जमीन शायद आखिरी जमीन हो, इसके बाद जो तैयारी होगी, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि अब तक खाली चंदा ही हो रहा है, मस्जिद बनाने की कोई बात नहीं चल रही है। तो उम्मीद है कि आखिरी जमीन हो, इसके बाद इंशाल्लाह मस्जिद बनाने की बात चलेगी। फिर आपकी जो तमन्ना, आप जो आरज़ू हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्द उसको भी पूरा किया जाएगा। बताएं, अगर इस तरह ना हो, 2-3 नौजवान खड़े हो जाएं और नाम लिखाने वाले नाम लिखा दें, अपनी हिम्मत से, अपनी बशास्त से बताएं। 1000, 2000, 5000, 1500 जितना भी हो, खड़े हो जाएं। खड़े हो जाएं, जियालू भाई बीच में खड़े हो जाएं और एक आदमी लिखने के लिए आ जाए। जल्दी से कर ले, 5 मिनट के अंदर, ताखिर हो रही, लेट हो रहा है। बताएं भाई, 1000, 2000, 5000 जितना भी हो, 500 हो, 100 रुपए हो, आप अपनी खुशी से, अपनी बसात से जो लिखाना चाहते हैं लिखा दें। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले जुमा को 5-6 लोगों ने लिखाया था, तकरीबन सबके पैसे आ चुके हैं, सिर्फ एक आदमी का पैसा रह गया है। उम्मीद है कि वो पैसे भी जल्द आ जाएंगे। और उन पुराने लोगों से भी मेरी दरखास्त है जो लिखा के रखे हैं, अब तक उनकी रकम नहीं आई है, उनके पैसे नहीं आए हैं, भाई आप जल्दी से दे दें तो इंशाल्लाह और भी आसान हो जाएगा। जो 1.5 लाख 2 लाख रुपए हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्दी रजिस्ट्री भी हो जाएगी। बताएं, जल्दी जल्दी बताएं। 1000, 2000, 500, 100 रुपए। अल्हम्दुलिल्लाह रमजान का मुबारक महीना चल रहा है, 1 हफ्ते गुजर चुके हैं। बताइए